जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है, कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंदवर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र की मैं वंदना करता हूँ। Hello students, so today we are going to start chapter number 3 and chapter number 3 is about pronoun. Okay, so let's start. So pronoun is used instead of nouns. Let's start. First of all, we will learn some concept about pronouns, then we will start exercise. Personal pronouns. Pronouns of the first person. I के लिए यूज होता है my, mine, me, right? Then we के लिए यूज होगा our, ours, us, myself and ourselves. Myself is also used for I. Okay. Now next, pronouns of the second person. See, first person में क्या आएगा? First person में आएगा I, second person means you and third person means क्या आएगा? Third person में आएगा he, she, it और वो सब he, she, it, them, they, ये सारे आते हैं थर्ड पर्सन में. I और we दोनों जो है वो फर्स्ट पर्सन में आते हैं. You, your, yours, yourself, yourselves. Yourselves जो है ये प्लूरल है. Ourselves जो है इट इज ऑल्सो प्लूरल. ओके, आपको ये याद रखना है कि कौन से प्लूरल है, कौन से सिंगुलर है. Pronouns of the third person. He, his, him, himself, she, her, hers, herself, it, its, itself, they, their, theirs, them, themselves. Okay, these are the type of pronouns for third person. Now see, case of personal pronouns. The following pronouns are used as a subject. I, we, you, he, she, it, they, ये सारे सब्जेक्ट है. अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? The following pronouns are used as an object. Me, us, you, him, her, it, them. These all are the object. Next is, the following pronouns are used as a possessive adjective. Possessive adjective means बताने के लिए कि ये इसका है, उसका है, ये किसका है. पोजेशन जो हमने लर्न किया था, एक चैप्टर में टॉपिक आया था पोजीशन, वहां पे हमने लर्न किया था, ये उससे रिलेटेड है थोड़ा. माई, अवर, योर्स, हीज, हर, इट्स, देयर मीन्स कि ये चीज के, ये घर, या तो ये किसका है वो बताने के लिए वी यूज possessive adjectives. Now see, these pronouns work as adjective. They always take a noun. जब भी हम ये वाले सारे यूज करेंगे, माई, अवर, योर्स, हीज, हर, इट्स, देयर, तो उसके पीछे क्या लगेगा? उसके पीछे लगेंगे nouns. फॉर एग्जाम्पल, माई बैग, इट्स बैग, देन इट्स लैग, देन माई हाउस, his house, your house, her house, their house. Okay, so कोई भी noun लगेगा ये सारे possessive pronouns के पीछे. Now see, the following words are possessive pronouns. Mine, ours, yours, his, hers, its, theirs. ये भी सारे क्या है? Possessive pronouns. Now, these words are pronouns, not adjective. They never take a noun after them. See, ये सारे जो हमने देखे, माई, अवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर, इन सब के पीछे नाउन लगेंगे. बट ये सारे पोजेसिव प्रोनाउन है, बट इनके पीछे नाउन लगेंगे नहीं. फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हुज बुक इज दिस, देन वी विल से इट्स माइन, राइट. उसके पीछे हम माई बुक नहीं लगाएंगे. इफ हमें माई बुक लिखना है तो हम माई यूज करेंगे, तो आगे नाउन आएगा पीछे. बट इन सारे वर्ड्स के पीछे नाउन्स आएंगे नहीं.
mine, ours, yours, his, hers, its, theirs. These words are pronouns, not adjective. They never take a noun after them. ये सारे words कैसे हैं? Pronoun, but इनके पीछे adjective नहीं लगेंगे. Now see, this book is mine. तो क्या बन गया वो? Mine. My book के बदले क्या बन गया? Mine. That pen is hers. Her pen का क्या हो गया? Hers. My dog and yours are both lovely. तो yours का क्या हो गया? Your dog का हो गया yours. I got my share and she hers. Her share का क्या हो गया? Hers. ओके पीछे इसके कोई भी नाउन लगेगा नहीं. Reflexive pronouns. The following pronouns are called reflexive pronouns. Myself, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, itself, themselves. ये सारे reflexive pronoun है. Reflexive pronouns are used as an object. They are used when the subject and the object are the same person. जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन होता है तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, शी इज लुकिंग एट हिम. तो सब्जेक्ट भी है और प्रोजेक्ट, ये इसमें दोनों डिफरेंट है. ये इसके सामने देख रही है तो सब्जेक्ट भी अलग है, ऑब्जेक्ट भी अलग है. नाउ शी इज लुकिंग एट हरसेल्फ, ये खुद अपने सामने देख रही है तो दोनों सेम है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे हरसेल्फ आएगा. शी इज टॉकिंग टू हिम, ये इससे बात कर रही है तो डिफरेंट पर्सन है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम आया. बट वो खुद से बात कर रही है तो शी इज टॉकिंग टू हरसेल्फ, सेम पर्सन तो हरसेल्फ आएगा. क्लियर? तो ये वाले जो सारे नाउन्स प्रोनाउंस है, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ, ये सारे जो है प्रोनाउंस वो जब हम सेम पर्सन, कोई सेम पर्सन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो तब ये यूज होगा. नाउ एक्सरसाइज, वी हैव टू कंप्लीट द चार्ट. ओके सी, कंप्लीट द टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस. तो ये हमें कंप्लीट करना है. लेट्स स्टार्ट. ये वाली एक्सरसाइज आप टेक्स्ट बुक में ही करोगे. See, in this chapter most of the exercise are fill-ups only, so we will complete all the exercise in textbook only. No need to write in notebook. You can write this table in notebook, but when I will tell you in the live class, then only you will write. Now okay, we will write this exercise. आप टेक्स्ट बुक में ही इसको अभी लिख लो. ओके सो फर्स्ट इज सिंगुलर एंड प्लूरल. ओके तो सिंगुलर में क्या आएगा? सिंगुलर में आएगा आई मी, फिर आएगा माई, आई मी माई, एंड देन क्या आएगा? माई के बाद आएगा माइन, फिर आएगा माई सेल्फ. डन. ओके नाउ नेक्स्ट इज यू. यू में ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? यू ही होगा उसमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, राइट? और फिर इसमें आएगा possessive pronouns and reflexive pronoun. They both are, possessive में आएगा yours and reflexive में आएगा yourself. Clear? Now next is himself. Himself किस में आता है? Himself आएगा he में. तो he से start करेंगे, he, फिर आएगा objective में him, possessive में his, possessive में his, और फिर आएगा लास्ट में possessive pronouns, adjective और pronouns दोनों में आएगा his. डन. ओके हर, हर किसके लिए यूज होता है? शी के लिए, राइट? सो यहाँ पे हम लिखेंगे शी, ऑब्जेक्ट उसका क्या होगा? हर, possessive उसका क्या होगा? possessive में आएगा हर, it takes possessive हर, देन उसका reflexive में आएगा herself. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज इट. इट का क्या होता है? इट का होता है इट, ऑब्जेक्टिव होगा इट, पॉसेसिव भी होगा, उसका पॉसेसिव होगा इट्स, और उसका पॉसेसिव प्रोनाउन होगा इट्स, और रिफ्लेक्सिव में इटसेल्फ. ओके ओके
नाउ नेक्स्ट इज प्लूरल। प्लूरल में क्या आएगा? प्लूरल में, चलो प्लूरल में क्या आएगा? प्लूरल में आएगा वी। वी के साथ क्या आएगा? वी के साथ आएगा, एक सेकेंड, वी के साथ आएगा अस, फिर अवर और अवर्स, और लास्ट में क्या आएगा? अवर सेल्व्स। सेल्व्स क्यों हो गया? क्योंकि ये प्लूरल है, राइट? अवर सेल्व्स। वी के साथ आएगा अस, देन अवर, देन अवर्स एंड अवर सेल्व्स। डन। ओके, नेक्स्ट यू। यू तो यू दोनों में आता है, सिंगुलर प्लूरल, इसलिए यहाँ पे यू वापस से आया है। यू के साथ क्या आएगा? उसका रूल सारे उसको वही फॉलो होंगे जो पहले में होते थे, योर एंड योर्स। तो ये सारे हो गए यू के। यू में क्या क्या आया? यू, यू, योर एंड योर्स। नाउ देयर। देयर किसके लिए आएगा? दे के लिए आएगा। दे, देम, दे, देम, फिर क्या हो जाएगा? उसका आएगा theirs, then themselves, लास्ट में हो जाएगा उसका themselves। डन। ये हो गया प्लूरल। अच्छे से आप ये पूरा चार्ट याद कर लो, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसको अच्छे से याद कर लो और इसको एक काम करो, ग्रामर की नोटबुक में लिख लो। ओके, नाउ सी नेक्स्ट इज चूज वर्ड्स फ्रॉम द अबोव टेबल फॉर ईच ब्लैंक। चलो अब नेक्स्ट है हमारा फिलअप। फिलअप के लिए क्या चाहिए हमें? चलो स्टार्ट करते हैं। फिलअप सब बहुत इजी है, हम फिल करते जाएंगे फिलअप्स। चलो ओके, फिलअप में क्या है? दैट्स रोजी डेस्क इज माय सिस्टर। तो क्या आएगा? रोजी गर्ल है, तो यहाँ पे रोजी के लिए क्या आएगा? हर। क्या आएगा इसके अंदर? हर। वी विल राइट हर, सॉरी, शी इज माई सिस्टर, यहाँ पे हम शी लिखेंगे रोजी के लिए। रोजी इज अ गर्ल, सो यहाँ पे क्या आएगा? शी। डन। नाउ वी एंजॉयड डेस्क मच लास्ट नाइट। तो वी है, तो वी का क्या आएगा यहाँ पे? अवर सेल्स। ओके, नेक्स्ट इज बॉब इज नॉट हियर। बॉब इज नॉट हियर, तो बॉब के बारे में बात हो रही है, तो क्या आएगा? ही इज नॉट हियर। द नेक्स्ट इज there's टॉम। डू यू नो there's टॉम? टॉम के बारे में बात हो रही है, तो क्या हम उसको जानते हैं? उसके लिए आएगा हिम। there's टॉम, डू यू नो हिम? ओके, डिड दे पेंट। डिड दे पेंट, देखो यहाँ पे नाउन दिया है, तो अब हम क्या लिखेंगे? डिड दे पेंट देयर हाउस। उन्होंने खुद पेंट किया है ये हाउस, तो यहाँ पे क्या आएगा? themselves। क्लियर? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ निशा इज अ नाइस गर्ल, वी लाइक हर। सेंटेंस बोलने से ही पता चल जाता है आंसर क्या आएगा, राइट?
What has the cat got in its mouth? कैट के लिए क्या आएगा? इट्स माउथ आएगा कि कैट के माउथ में क्या है. हेलो, माय नेम इज अनिल. व्हाट्स योर्स? क्या आ गया यहाँ पे? योर्स. Okay, now next is don't play with fire, you will burn yourself. क्या आएगा यहाँ पे? Yourself. Now next is she loves looking at herself in the mirror. Herself, उसको अपने आप को मिरर में देखना बहुत पसंद है. Herself in the mirror. I have got a problem. Can you help me? क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो? यहाँ पे आएगा me. Okay. Now next exercise इसी में अभी है शायद. Okay. Still. Okay, next है Is this your pen? No, it isn't mine. इसमें क्या आएगा? Mine. नहीं, ये मेरी नहीं है. देखो लास्ट में नाउन नहीं है तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव आएगा mine. Okay. Our house is not big. It is quite small. क्या आएगा यहाँ पे? Is है तो ऑलरेडी यहाँ पे तो क्या आएगा? It is quite small. They have got their share. We have got mine. They have got their share. Sorry, we है यहाँ पे तो we के लिए यहाँ पे क्या आएगा? Our. Plural है तो ours. We have got ours. Now this is not Lucy's house. It is next door. See, this is not Lucy's house. Lucy के घर के बात हो रही है तो hers is next door. क्या आएगा यहाँ पे? Hers is next door. उसका घर जो है वो next door यानी कि बाजू में है. Now I am tired. I am making a cup of tea for myself. मैं tired हूँ तो मैं खुद के लिए बनाऊंगी ना चाय तो myself. Done. Who is that old man? Do you know? Sorry, who is that old woman? Do you know? Her आएगा ना, woman है तो her आएगा. Now my friend and I don't have any money. मेरे friend और मेरे पास कुछ भी नहीं है तो us आएगा with us. Next exercise we have to fill it. ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज फिल करते हैं इसमें अभी समय नहीं रहा है वेट इसमें एक और एक्सरसाइज चाहिए तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ इतना ही बस ओके चलो इसमें क्या आएगा आंसर सी वेरी इजी एक्सरसाइज इसमें क्या आएगा आई आई लव यू यहाँ पे आएगा यू
आई लव यू, फिर इसमें क्या आएगा, डू यू लव मी। ओके, नाउ इसमें आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा वी कैन, देखो उसको देख सकते हैं वो, वी कैन सी देम बट दे कैंट सी अस, कि हमें, हम उन सबको देख सकते हैं बट वो लोग हमें नहीं देख सकते हैं, तो वी कैन सी देम बट दे कैंट सी अस। डन। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो, शी इज एंग्री विथ हर, इसमें हम कर देंगे शी इज एंग्री विथ हिम, वो उसके साथ एंग्री है, एंड ही इज एंग्री विथ हर, इसके साथ क्या आ जाएगा, और वो उसके साथ एंग्री है, दोनों में आ जाएगा, तो ही के साथ ही इज एंग्री विथ हर, गर्ल की बात हो रही है तो हर। डन, ये एक्सरसाइज यहाँ पे हो गई। ओके, नाउ कंप्लीट दिस लेटर टू पेन, टू अ पेन फ्रेंड, एड सुटेबल प्रोनाउन। चलो अब ये एक्सरसाइज भी करते हैं, इसमें हमें एक लेटर दिया है, उसके अंदर हमें हमारे हिसाब से प्रोनाउंस ऐड करने हैं। ओके, लेट्स सी, कहाँ गया, ओके ये रहा लेटर। चलो इस लेटर में हमें प्रोनाउंस ऐड करने हैं। ओके डन, तो हम क्या ऐड करते जाएंगे इसके अंदर, चलो, डियर सोनू आई एम, ओके क्या है, डियर सोनू आई एम 12 years old, हियर, हियर्स माई फोटो, यहाँ पे क्या आएगा कि ये मेरा फोटो है, हियर्स माई, वेट, हियर्स माई फोटो। ओके, I have got one brother and one sister. Dash sister name is Tina. तो यहाँ पे क्या आएगा, My sister's name is Tina. Dash is very nice. तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, टीना की। She is very nice. Then everyone likes her. किसको like करते हैं, टीना को, तो यहाँ पे her आएगा, right? Okay. Now my brother name is Tony. Desk is sometimes very naughty. किसकी बात हो रही है, टोनी की, तो यहाँ पे आएगा he is sometimes naughty but I like him. But I like him. Okay. My grandmother also live with us. हमारी grandmother हमारे साथ रहती है. She has a funny habit. She keeps talking to herself. ग्रैंडमा क्या करते हैं, वो अपने आप से बातें करते रहते हैं, ऐसा बता रहे हैं। नाउ आई लव टू प्ले क्रिकेट, व्हाट गेम डू यू प्ले, तो यहाँ पे क्या आएगा, यू, व्हाट गेम डू यू प्ले, प्लीज राइट टू मी सून, प्लीज मुझे जल्दी से वापस लेटर लिखना। ओके, विथ बेस्ट विशेस नीरज। नाउ कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। ओके, नाउ सी अदर प्रोनाउंस, other pronouns. We use one instead of repeating a singular noun. We use ones instead of repeating plural noun. See, जहाँ पे singular noun को repeat करना है वहाँ पे हम one लिखेंगे, जहाँ पे plural noun को repeat करना है वहाँ पे हम ones लिखेंगे। ये याद रख लो, one कब आएगा, ones कब आएगा। ओके, we use one and ones in a place of countable noun, और one and ones सिर्फ countable noun में आएगा, ये भी याद रख लो। ओके, I am making a sandwich. Would you like one? देखो सैंडविच यहाँ पे जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे वन आया, would you like one? Do you want big apples or small ones? See, एप्पल्स की बात हो रही है, एप्पल्स प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आ गया, वंस आ गया। Look at this jacket. Which one do you like? See, जैकेट्स है,
लुक एट दिस, विच वन डू यू लाइक। सी, इसमें अभी जैकेट आया है, बट वो क्या पूछ रहे हैं कि इसमें से तुम्हें कौन सा पसंद है, इसलिए वन है यहाँ पे, विच वन डू यू लाइक। वी हैव मेनी काइंड्स ऑफ फ्लावर which have many kinds of flowers, which ones do you want। तो यहाँ पे क्या आएगा, ones आ गया। ओके, नाउ सी, look at the following word, they are used as a pronoun। ये सारे क्या है, ऐसे वर्ड्स है जो प्रोनाउंस की जगह पे भी यूज होते हैं। एंड दीज आर somebody, someone, something, somewhere। सी, ये सारे और ये सारे, everybody, everyone, everything, everywhere, ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होते हैं। एंड anybody, anyone, anything, anywhere, nobody, no one, nothing, nowhere, ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं। ओके, दिस बोथ कॉलम्स यूज फॉर नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, दिस कॉलम एंड दिस कॉलम यूज फॉर पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस। नाउ एग्जांपल, देयर इज somebody एट द डोर, वहां पे कोई है, पॉजिटिव सेंटेंस है। देयर इजंट एनीबडी एट द डोर, वहां पे एनीबडी मतलब कि वहां पे कोई नहीं है, ऐसा, एनीबडी मीन्स कोई नहीं है वहां पे, राइट। इज देयर एनीबडी एट द डोर, क्या वहां पे कोई है। ओके, नाउ सी, वी कैन यूज somebody, someone, something, somewhere in questions to make a request of or offer। सी, somebody, someone, सबको आप क्वेश्चंस के लिए भी यूज कर सकते हो, लाइक अ रिक्वेस्ट। कैन somebody help me, ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, ये ऑफर हो गया। कैन वी गो समवेयर फॉर पिकनिक, ये भी रिक्वेस्ट हो गई। वर्क विथ योर पार्टनर एंड मेक सेंटेंस यूजिंग ऑल द प्रोनाउंस। सी, नाउ नेक्स्ट इज नॉट दैट, नॉट प्लस एनीबडी, नॉट प्लस एनीवन, नॉट प्लस एनीथिंग एंड नॉट प्लस एनीवेयर। जब हम नॉट एनीबडी लिखते हैं, उससे ज्यादा अगर हम नोबडी लिखे तो ज्यादा सुटेबल होता है और ज्यादा फोर्सफुली अच्छे से उसके ऊपर कमांड बैठता है। ओके, सो वी विल से नॉट, वी विल नॉट से नॉट एनीबडी, वी विल से नोबडी, नो वन, नथिंग, नोवेयर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। देयर इज अ नोबडी हियर, तो ये ज्यादा इम्फेटिक मीन्स ज्यादा अच्छा लगता है और ज्यादा कमांड ज्यादा लगता है कि भाई ये स्ट्रॉन्ग फील होता है थोड़ा। देयर इज द नॉट एनीबडी हियर, we have nothing for dinner, we have not anything for dinner। Okay, now see, fill in the blanks with one or ones। चलो ये fill up करनी है हमें with one or ones। See, I will have one apple, one apple है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, one। ओके, प्लूरल होता तो फिर आता वंस। इज दिस योर हाउस, हाउस की बात हो रही है तो इट इज अ प्रीटी वन, तो भी वन आएगा यहाँ पे। आई वॉन्ट एन ऑरेंज, गिव मी दैट बिग वन, एक ही ऑरेंज है तो भी वन आएगा यहाँ पे। अनीता, दोज आर माई डोल्स, देखो अभी यहाँ पे डोल्स आ गया है। विच वंस, अनीता दोज आर माई डोल्स, तो अनीता पूछ रही है कौन सी सारी। नाउ अब अनीता, द वंस ऑन द टेबल, अब क्या बोल रही है, द वंस ऑन द टेबल, जो टेबल पे पड़ी है वो सारी। अनीता, नो, द अदर वंस, नहीं वो नहीं, दूसरी वाली, तो प्लूरल्स में जाएगा सारा क्योंकि डोल्स के बारे में ही बात हो रही है। और यहाँ पे भी क्या आएगा, द वंस ऑन द शेल्फ। ओके, ये सब में यहाँ पे प्लूरल आ गया क्योंकि ये प्लूरल है, डोल्स के बारे में बात हो रही थी और डोल्स जो थी वो प्लूरल थी। नाउ एक्सरसाइज नंबर 2, यूज वन और वंस इन प्लेस ऑफ अ वर्ड और वंस इन इट्स सेंटेंस। अभी यहाँ पे नाउन्स यूज हुए हैं, उस नाउन की जगह पे हमें वन या वंस यूज करना है। ओके, तो इसी में हम कर लेंगे एक्सरसाइज, बुक में करने की जरूरत नहीं है, इसी के अंदर कर लेते हैं चेंजेस।
ओके, सी माई हाउस इज नेक्स्ट डोर, तो क्या आएगा, पहले तो हमें जो कट करना है उसको कट कर लेंगे। माई हाउस इज नेक्स्ट डोर, तो क्या कट किया इसमें, हाउस दो बार नाउन है, ये भी हाउस है और ये भी हाउस है, राइट। तो इस हाउस को हम कट करेंगे, उसके बदले क्या आएगा, वन। हु आर दोज मैन, द मैन इन द कार, देखो इसमें कौन सा नाउन रिपीट हो रहा है, मैन, राइट। तो इस मैन को कट करेंगे, ओके, और यहाँ पे क्या आएगा, MEN मैन है तो प्लूरल है, राइट। यहाँ पे क्या आएगा, वंस, सॉरी ऐसे नहीं लिख पाऊंगी मैं, अलग से लिख के दिखाती हूँ, ओके। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वंस, डन, मैन को कट करके वंस। आप कट करके ऊपर लिख लेना, मैं इसके ऊपर ही लिख रही हूँ, ओके। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वंस। नेक्स्ट इज, डू यू लाइक द ब्राउन शूज और द ब्लैक शूज, सी शूज जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो शूज है उसको हम कट करेंगे और उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, इस शूज को कट करके उसकी जगह पे हम लिखेंगे वंस। शूज जो है वो प्लूरल में है, राइट, तो यहाँ पे वंस आ जाएगा, शूज को कट करके लिख लो वहां पे वंस। नाउ मिस्टर कपूर्स चिल्ड्रन आर द चिल्ड्रन अंडर द ट्री, चिल्ड्रन चिल्ड्रन रिपीट है, चिल्ड्रन नाउन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, चिल्ड्रन की जगह पे, चिल्ड्रन प्लूरल है ना, तो यहाँ पे कर देंगे वंस, डन। नाउ नेक्स्ट इज, यू हैवंट गॉट अ कंप्यूटर बट आई हैव गॉट अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की बात हो रही है यहाँ पे कंप्यूटर एक ही है, तो क्या आएगा, वन। नाउ नेक्स्ट इज, ऑल गर्ल्स हैव पास्ड बट द गर्ल इन द ब्लू फ्रॉक हैज फेल्ड, कौन सी गर्ल के बात कर रहे हो, सारी गर्ल्स पास हो गई है बट जो गर्ल ब्लू फ्रॉक में है ना वो पास नहीं हुए, तो एक ही गर्ल की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, बट द वन इन ब्लू फ्रॉक हैज फेल्ड, ओके। हमने क्या कर दिया है यहाँ पे, वन कर दिया। चलो आपको क्या करना है, ये कट करके वर्ड्स बाजू में आप लिख लेना, मैंने ऊपर ही लिखे, आप बाजू में लिख लेना। नाउ सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज, कंप्लीट द टेबल, ओके, कंप्लीट करना है टेबल, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे वन यूज करना है, बट आगे क्या लगाना है, इस सारे में सम लगाना है, इस सारे में एनी लगाना है, सम वन, एनी वन, समबडी, एनीबडी, समथिंग, एनीथिंग, फिर समवेयर, एनीवेयर, ओके, ऐसे करके लिख लो। इस सब में नो और एवरी लगाना है, नो वन, नो, नो वन, एवरी वन, नो बडी, एवरीबडी, नथिंग, एवरीथिंग, nowhere, anywhere, right, okay. Now next is exercise number 4. Choose for each blank a suitable word from the above table. हमें इसमें एक अच्छा सा something, anything, nothing में से कोई भी एक word लगाना है जो इसे सूट करता हो, okay, see, सेंटेंस रीड करोगे नेगेटिव साउंड हो रहा है तो एनीथिंग और नोबडी, नथिंग वाले वर्ड्स आएंगे जो मैंने आपको बताया थे कि जो नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं, राइट। लेट्स सी, आई हैवंट गॉट लिखा है टू रीड, तो एनीथिंग आएगा। सपोज ऐसा आता कि आई हैव गॉट, तो आता समथिंग, क्लियर, बट ये नेगेटिव है, आई हैवंट गॉट एनीथिंग टू रीड। आई फील बोर्ड, आई फील बोर्ड, तो इसमें क्या आएगा, चलो इसको एक मिनट, हाँ पीछे एक्सरसाइज करते हैं। इसमें क्या आएगा, अरे एक सेकेंड, ओके, ये है आई हैवंट गॉट एनीथिंग टू रीड, आई फील बोर्ड, सी इसमें क्या आएगा, आई फील बोर्ड, आई हैव नथिंग टू रीड, नेगेटिव सेंटेंस है ना, आई फील बोर्ड, मुझे तो बोर्ड फील हो रहा है, तो क्या आएगा, आई हैव नथिंग टू डू, मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, नथिंग टू डू। वी आर गोइंग आउट डेस्क फॉर लंच, तो क्या आएगा, पॉजिटिव सेंटेंस है, वी आर गोइंग टू आउट, तो क्या आएगा, समवेयर, कहीं पे जा रहे हैं खाना खाने के लिए, समवेयर, राइट। नाउ नेक्स्ट इज, यू लुक सैड, सैड देखो नेगेटिव सेंटेंस है, यू लुक सैड, इज डेस्क ऑल राइट, क्या आएगा, इज एवरीथिंग ऑल राइट,
Now next is the house is empty. Desk lives here. Nobody lives here. House कैसा है? खाली है. Nobody lives here. I am hungry. Please give me something to eat. मुझे खाने के लिए कुछ दो. Something to eat. I feel lonely. I haven't got anything to talk to. क्या हो रहा है? सॉरी, यहाँ पे क्या है? I feel lonely. I haven't got anyone. मुझे lonely feel हो रहा है. मेरे पास कोई है नहीं बात करने के लिए. Anyone. Okay? The train is full. The train is full. There is a nowhere to sit. ट्रेन जो है वो फुल है, जगह नहीं है बैठने के लिए, कुछ भी जगह नहीं है बैठने के लिए कोई भी. I didn't find him anywhere. मैंने उसको सब जगह पे ढूंढा, वो कहीं मुझे मिला नहीं. I didn't find him anywhere. I have looked everywhere. मैंने सब जगह पे देख लिया. Okay. Now next is make the following sentence negative and interrogative. See, अब इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में लिखना है. ये वाली एक्सरसाइज आपको नोटबुक में करनी पड़ेगी. ओके, बाकी सारी एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही करनी है. सिर्फ एक जो टेबल मैंने आपको दिया था पेज नंबर 97 पे जो टेबल है वो टेबल एक आपको लिखना है नोटबुक में, और एक सिर्फ ये एक्सरसाइज. बाकी सारी एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही करनी है. ओके, नाउ सी द एक्सरसाइज. दिस एक्सरसाइज, राइट? ओके, ये एक्सरसाइज हम करेंगे अभी नोटबुक में. एक मिनट. हाँ, सी, फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है. दैट मेक द फॉलोइंग सेंटेंस नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव. ही नोज समथिंग, उसको हमें नेगेटिव बनाना है. तो वी रॉट ही डजंट, ही डज नॉट नो एनीथिंग, उसको कुछ पता नहीं है. डज ही नो एनीथिंग, क्या उसको कुछ पता है? डज ही नो एनीथिंग. ओके, नाउ तो सेकंड को बनाते हैं. दे सो समबडी, दे सो समबडी एट द गेट. वहां पे किसी को देखा उन्होंने. दे सो समबडी एट द गेट. तो उसका हमने क्या बनाया? दे डिडंट सी एनीबडी एट द गेट. ओके, वहां पे उन्होंने किसी को नहीं देखा. सी, ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो हमने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया? डिड ऐड कर दिया. दे डिडंट सी एनीबडी एट द गेट. और उसका क्वेश्चन क्या बना? डिड दे सी एनीबडी एट द गेट. क्या वहां पे उन्होंने किसी को देखा? ओके, थर्ड सेंटेंस, शी हैज टोल्ड द सीक्रेट टू समवन. उसने किसी को सीक्रेट बता दिया है, ऐसा सेंटेंस है. तो क्वेश्चन क्या बनेगा? नेगेटिव क्या बनेगा? शी हैजंट टोल्ड द सीक्रेट टू एनीवन. उसने किसी को सीक्रेट बताया नहीं है. नेगेटिव क्या बनेगा? हैज शी टोल्ड द सीक्रेट टू एनीवन. ओके, दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस. नाउ फोर्थ वन, देयर वाज समथिंग अंडर द बेड. फोर्थ वन क्वेश्चन क्या है? देयर वाज समथिंग अंडर द बेड. वहां पे कुछ है बेड के नीचे. ओके, तो उसका क्या बनेगा? नेगेटिव. देयर वाजंट एनीथिंग अंडर द बेड. वहां पे बेड के नीचे कुछ भी नहीं था. was there anything under the bed. क्वेश्चन क्या बना उसका? was there anything under the bed. क्या वहां पे बेड के नीचे कुछ था? ओके, नाउ दे वेंट समवेयर इन द इवनिंग. वो लोग कहीं पे गए थे इवनिंग में. ओके, तो उसका नेगेटिव क्या बनेगा? दे डिडंट गो एनीवेयर इन द इवनिंग. ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है. वेंट जो है वो पास्ट टेंस है. तो दे डिडंट गो एनीवेयर इन द इवनिंग. नहीं, वो लोग कहीं नहीं गए थे इवनिंग में.
और उसका क्या बनेगा, दे वेंट समवेयर इन द इवनिंग, डिड दे गो समवेयर, डिड दे गो एनीवेयर इन द इवनिंग, यहाँ पे क्या ऐड हो गया, एनीवेयर। ओके, जहाँ पे भी समथिंग और वो सब था वहां पे एनीथिंग और एनीवेयर हो गया, समवन के बदले एनीवन और ये सब कुछ चेंजेस हो गए यहाँ पे। ये वाली एक्सरसाइज आपको नोटबुक के अंदर लिखनी है, इसमें आपको क्वेश्चन भी लिखना है और नीचे दो दो आंसर भी आएंगे, एक आंसर आएगा नेगेटिव और एक आएगा इंट्रोगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।